So today we will continue with the question number 7 of exercise 7.1, where we have been asked tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus tan theta plus cot theta. Okay, you will see some changes and adjustment over here. So this question a bit lengthy, but watch it carefully and it will be a easier one for you. We will just do a slight changes into this. Okay, so just see how the solution will takes place. So as I have already written the question for the LHS, now we already know that tan theta is sin theta upon cos theta. Alright, for the tan theta we have written sin theta upon cos theta, and then the main fraction part 1 minus cot theta is cos theta upon sin theta, because that was the main fraction part, so we have written the equal sign over here. In between it is plus cot theta is cos theta, I hope you are able to see, cos theta upon sin theta into the denominator 1 minus sin theta upon cos theta. Alright, so over here we are seeing that the denominators for this part and this part is not equal. See, for this part, this is 1 upon 1, this is 1 upon 1. जब हमें दिखे कि फ्रैक्शन पार्ट जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा उसके बाद में, टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. फर्स्ट जस्ट कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनटू द इनिशियल वन, दैट इज साइन एंड कॉस, जैसे कि हमने यहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए. आफ्टर दैट वी विल डू द solution part for the taking LCM. So here we go. Sin theta upon cos theta, the main part of the fraction part. हम इस क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So sin theta multiplied by 1 will be sin theta, minus 1 multiplied by cos theta will be cos theta upon sin theta, then plus cos theta sin theta will be written as it is, and the main denominator again cos theta will be multiplied by 1, so it will become cos theta minus sin theta, and into the denominator 1 multiplied by cos, that is cos theta. Okay, so now अब हम क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन पार्ट के जो ये डिनोमिनेटर पार्ट और इस फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर अब हो चुके हैं सेम. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू, आई होप यू रिमेंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर मेन फ्रैक्शन पार्ट एंड देन अगेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. व्हेनेवर टू फ्रैक्शंस आर देयर इनटू द वन फ्रैक्शन ओनली, सो व्हाट वी डू, दिस डिनोमिनेटर कम्स इनटू द न्यूमरेटर. ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस ऊपर वाले का नीचे न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट मीन्स दिस साइन थीटा विल गो अप एंड इट विल बिकम साइन इनटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर अपॉन, देन दिस कॉस विल मल्टीप्लाई बाय दिस होल, सो वी कैन राइट लाइक दिस कॉस थीटा इनटू द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. लेट मी जस्ट मेक अ बिट बिगर, plus the same thing will be done over here also. Cos theta upon cos square theta, because cos will go up, so it will become cos square theta upon this will sin will come over here, sin theta into cos theta minus sin theta. Alright, so now we have come across towards this. Now I hope you can able to see this, that over here we have cos theta, over here we have sin theta. अब फिर से हमारे पास में दो फ्रैक्शन पार्ट फिर से आ चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ है, एक तरफ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक तरफ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. मतलब एक तरफ है कॉस नेगेटिव और एक तरफ है कॉस पॉजिटिव. जैसे कॉस यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे है कॉस पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे अब करने वाले हैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट. सो लेट्स सी इट. सो
that adjustment is going to be take place with the sign of the negative. हम क्या करेंगे? I hope you will not able to see over here because some flash is coming over, so I'm just writing over here. Just see it carefully. ये वाले स्टेप को तो हम as it is लिखेंगे. So let me just write this. ये जो स्टेप है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos theta and in the bracket sin theta minus cos theta. What we have done, हमने क्या किया, ये वाले स्टेप को तो हमने as it is लिख दिया, लेकिन हमने adjustment now we will do over here. What we will do that, cos square theta यही रखा, हम इस ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन को ले लेंगे कॉमन. ठीक है, तो हमने नेगेटिव साइन को ले लिया कॉमन, बाहर आ गया, बाहर ऑलरेडी एक साइन थीटा तो था ही. ठीक है, अब देखो जब किसी ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं ना, तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं. मतलब जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बदल जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा. एज यू कैन सी ओवर हियर, कॉस थीटा जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ. और ये क्यों हुआ? बिकॉज वी हैव टेकन अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. हमने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस अगेन दैट स्टेप विल बी रिटन वन मोर टाइम. ये हम एज इट इज लिख रहे हैं अभी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, प्लस, अब यहाँ पे प्लस हम नहीं लिख रहे पहले, जस्ट नाउ लिसन. यहाँ पे है नेगेटिव साइन और यहाँ पे है पॉजिटिव साइन. साइन से साइन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. यहाँ पे क्या ब्रैकेट है ना, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो जाए सो यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर. सो वी हैव रिटन नेगेटिव साइन ओवर हियर एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा. अब जो है ये एज इट इज हम लिख रहे हैं साइन थीटा. हम इसे बस थोड़ा सा एडजस्ट करें. क्या कर रहे हैं? साइन को हम पहले लिख देते हैं, कॉस को बाद में लिख देते हैं. The things will be remain as it is. हमने कुछ चेंज किया? We haven't changed anything. ये cos माइनस cos था, हमने बस यहाँ लिख दिया और जो प्लस साइन था हमने उसे पहले लिख दिया. That's it. Now just look at over here. Into this step what we were having, cos था नेगेटिव में लेकिन यहाँ था cos पॉजिटिव में. तो ये तो सेम नहीं है क्योंकि 7 और -7 दोनों सेम नहीं हो सकते हैं ना. They both are different. So this is what the difference was into the denominator in this step. इसीलिए हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया. अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ भी साइन माइनस कॉस है. सो दैट मीन्स हमें ये वाला पार्ट तो हमारे पास में दोनों में कॉमन है. सिर्फ किस चीज़ की कमी है? हमें कमी है साइन थीटा और कॉस थीटा की. तब हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत है क्या? नहीं है. तो हम सिर्फ साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर. सो इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा. डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बाद में लिख लेते हैं. साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, कॉस से. तो कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा. और जो नीचे है साइन और कॉस, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ये डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए जो हम बीच के दो स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं उसका इलस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी इनिशियल क्वेश्चंस में दे चुकी हूँ. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी. यू हैव लर्न अबाउट द a प्लस बी द होल स्क्वायर. आपने ये भी पढ़ा है a माइनस बी द होल स्क्वायर. फिर आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सारे देखो, होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर. और फिर एक और आइडेंटिटी पढ़ी जिसमें इंडिविजुअल का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर 9th में आपने दो आइडेंटिटी और पढ़ी कुछ इस तरह से, a प्लस बी द होल क्यूब. फिर आपने एक और पढ़ी a माइनस बी द होल क्यूब. फिर आपने क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब. माइट बी नॉट रिमेंबर, हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, बट लेट मी टेल यू, ये आइडेंटिटी शायद आपने याद नहीं की, बट इस आइडेंटिटी को आपने प्रूव किया है. इन द चैप्टर पॉलिनॉमियल लास्ट ईयर फॉर 9th स्टैंडर्ड आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है. लेट मी जस्ट शो द क्वेश्चंस टू यू फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड. सो दैट इज द क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये वो आइडेंटिटी है जो आपने लास्ट ईयर प्रूव कर रखी थी, हालांकि लर्न नहीं की, पर हम उसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर. Alright, so just let me write the identity for you. Okay, what we're gonna do is we will use the identity for sin cube minus cos cube. क्या है वो identity? We will write as sin theta minus cos theta in the bracket, फिर again the bracket sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta. Again the bracket, again the denominator, then sin theta into cos theta and bracket close, sin theta minus sin theta minus cos theta. ये कहाँ से आया? ये cos sin theta minus cos cube theta को हमने evaluate किया है into the identity. Since I don't have the place over here, so I'm writing that identity in a very short over here. So kindly make it done over here. All right. This is a cube minus b cube, which is equals to a minus b in the bracket again a square plus b square plus ab. ये है वो आइडेंटिटी जिसका हमने यूज किया है यहाँ पर. सो यू जस्ट टेक दिस, यू जस्ट राइट दिस आइडेंटिटी ओवर हियर कि हमने साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को इस फॉर्मेट में इंक्लूड कर दिया है. ऑलराइट, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर दिस साइन थीटा एंड this sin theta cos theta and this sin theta minus cos theta, the same bracket are there, so we can cut it down. All right, now after this we will, what we gonna do is just write what we have remained, and that is sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta in the denominator, sin theta cos theta. ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हम इसके बाद में देख रहे हैं कि हम चाहो तो इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दें. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चेंज आएगा. देखो, अगर आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच जाएंगे. इट इज 20, यस ऑफ कोर्स इट इज 20. आप क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 20 पूरा प्रोसेस यही है, यहाँ तक प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर आके चेंज हो जाता है. क्या चेंज हो जाता है कि वहाँ पे हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखना होता है, पर यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, हमें 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस की जरूरत है ना, 1 2 3 3 डिफरेंट फ्रैक्शन की जरूरत है. तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 3 टर्म हमारे पास में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 नहीं लिखेंगे. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप? I just want to rub the board over here. You just please take a screenshot for this so that I can rub the upper part of it. I hope you have taken the screenshot. So I have written the last step over here. So we will continue from this. Okay. So as I was saying कि अगर आप यहाँ तक करते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख लेते हैं, तब आप क्वेश्चन नंबर 20 में जंप करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आप क्वेश्चन नंबर 20 में जंप करेंगे, और अगर आप इसे एज इट इज जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे. अब क्या करना है हमें, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना डिनोमिनेटर में,
वो इस साइन स्क्वायर थीटा का भी डिनोमिनेटर है, इस कॉस स्क्वायर थीटा का भी डिनोमिनेटर है, और इस साइन थीटा कॉस थीटा का भी डिनोमिनेटर है. सो कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिया, इसके भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अगेन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में वन मोर टाइम साइन थीटा कॉस थीटा. क्योंकि हम ये करते हैं ना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर को हम जो भी है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सिचुएशंस में उसे कैरी आउट करते हैं. सो वी हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द डिनोमिनेटर. नाउ जस्ट सी ओवर हियर, यहाँ पर है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा. तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर 2 टाइम साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा से कैंसिल. यहाँ पे सेम चीज देखो, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर था, मतलब 2 कॉस थीटा थे, एक कॉस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कंप्लीट कैंसिल. अब हमारे पास में क्या क्या बचा है यहाँ पर, व्हाट वी हैव रिमेन ओवर हियर एज साइन थीटा, क्योंकि ऊपर 2 साइन स्क्वायर था उसमें से एक कट गया तो एक बच गया, नीचे सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है तो सिर्फ एक कॉस थीटा बचेगा, और नीचे बचेगा साइन थीटा प्लस 1. व्हाट अबाउट साइन थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा which will become cot theta plus 1, and that was what your RHS. बस क्या हुआ, एक 1 इधर आ गया, नो प्रॉब्लम, हम उसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से ना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बस 1 को उधर पे लिख दो, बात तो वही है. तो ये क्या था आपका RHS, और LHS आपका क्या है, सॉरी ये है आपका LHS, और RHS क्या है आपका, दैट इज 1 प्लस टेन थीटा plus cot theta, hence LHS is equals to RHS, hence proof.